we were doing water. It is a precious resource. We need it for so many things. We already had done. There are so many ways by which we are using water, right? Water exists in three forms, that is solid, liquid, gas. We all are very much familiar with that. Three forms of water, it is available in nature. And water is the only matter whose three forms are naturally available in nature. Okay? Whose three forms are naturally available. However, all forms of water are not usable for us. We can use only fresh water. And fresh water, which is available in nature, it is in very less amount. One of the form is groundwater. We had discussed about the groundwater. This groundwater rises, or the water table increases by the process of infiltration. Means when soil seeps the water. There are certain ways by that we had already discussed by which the level of groundwater depletes. Okay, or water level is decreasing. We had discussed these ways yesterday. Is there any doubt in these ways? No. Afterward, we had done rainwater harvesting under the topic water management technique. हमने कल स्टार्ट किया था वाटर मैनेजमेंट टेक्निक और इसमें नो डाउट आपके सारे पॉइंट्स थे that we should avoid wastage of water. We will also include that. वो सारे include करेंगे. Water management technique में एक टेक्निक हमने की थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कल हमने इसका डायग्राम तक करके कंप्लीट कर लिया था. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स we are saving the water, we are storing the water that falls on the roofs of the houses and along the roadside. Allow this water to pass from a percolation pit. Our percolation pit, it consists of sand, clay and bricks, marbles. इन सब चीजों से बनी होती है percolation pit. When water is allowed to pass from that, it automatically gets filtered. वो अपने आप ही filter हो जाता है due to the bacteria present in the nature. Okay. Is there any advantage of rainwater harvesting? Now, what are the various advantages of rainwater harvesting? Anji Drishti, what are the advantages, बच्चे? Ma'am, we can use rainwater for our future use, like for washing or cleaning. Yes, we can use rainwater for the future use. It is store. Yeah, use it for use water for future to you have to fulfill the future needs. Okay. Anji, Arpita. Arpita. Mitul. Himanshi. Prevents useless wastage of rainwater. That's right, Sanya. Prevents. One by one, please. One by one. You can raise the hand today. I'll call your name. Anji, prevents useless wastage of rainwater. Obviously, जो रेन वाटर हमारे रूट्स पे फॉल करता है वो सारा हमने सेव कर लिया. अगर वो वाटर हम सेव नहीं करते तो आपकी रूट्स से वो आइदर तो फ्लो ऑफ कर जाएगा, है ना? वेट, हाँ जी. Okay, children. There is some sort of disturbance. Anyhow, हाँ जी, सर व्यापक, would you like to share something? और क्या पॉइंट हो सकता है? सरब, क्या बेनिफिट है इसका? सात्विक, एक मिनट.
हाँ जी हिमांशी, बोलो बच्चे। The water table can be raised by water harvesting. हाँ, we can use, sorry, can you please repeat? The water table can be raised by rainwater harvesting. वाटर टेबल कैन बी राइज्ड, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारा वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उसको हम राइज कर सकते हैं, राइट। और लक्ष्य, लक्ष्य, हाँ जी, और क्या पॉइंट हो सकता है? जानवी, A farmer using water in the field can also use the water economically. we can also use the water economically, पूरा पॉइंट बोलोगे? Janvi, can you please repeat your point? Yes, ma'am. A farmer using water in the field can also use water economically. Maybe you have heard of drip irrigation. We can also use it for drip irrigation. ये वाला पॉइंट बच्चे हमने इसको फर्दर डिटेल में ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक भी इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। यूज इट फॉर ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन होता है गिविंग वाटरिंग टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन हमने सेकेंड टेक्निक करनी है, बाद में करते हैं। हाँ जी लक्ष्य, और क्या पॉइंट हो सकता है? And we can use it for watering the plants and also for the growth of the seedlings. For the drip irrigation or for the growth of plants, ये सेम ही है, ठीक है। For growth of plants, ठीक है। तो बेसिकली यूजेस यही है बेटे, बाकी तो उसका जस्ट हमने पॉइंट्स को थोड़ा सा टर्न किया। फर्स्ट और फॉरमोस्ट यूज वाटर टेबल का ये है, सॉरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये है कि पहली चीज तो हमारी वाटर की डिमांड फुलफिल करता है। सेकेंडली वी आर इंक्रीजिंग द वाटर टेबल, ठीक है। अगर वाटर टेबल इंक्रीज करता है, हाँ जी समृद्धि पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, improves the quality and quantity of water. Quality means the fresh water, availability of fresh water is more, ठीक है। It fulfills the demand of availability of fresh water. क्वालिटी का यही मतलब है ना बच्चे आपका, समृद्धि जो आपने लिखा था, क्योंकि हमें हमारे पास फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। सॉरी हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल होती है बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। फुलफिल फ्यूचर डिमांड्स या फ्रेश वाटर, ये बाय चांस सेम पॉइंट हो गया, मीनिंग सेम है। सेकेंडली आपने कहा क्वांटिटी बढ़ जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। इट इंक्रीजेस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देन वाटर टेबल आपका राइज हो जाता है, वेस्टेज कम हो जाती है, यूजलेस वेस्टेज जो हो रही है हमारे वाटर की, अदरवाइज जो रेन वाटर फॉल करता है रूफ से वो डायरेक्टली हमारे सीवेज सिस्टम में चला जाता है, तो वो सीवेज वाला वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं, राइट। और इसके अलावा बच्चे मैं ये पॉइंट क्योंकि रिपीट हो गया तो मैं ये लिख रही हूँ, जब हम ये वाटर रेन वाटर को, जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, सिंपल रेन वाटर मूव करता है, रेन जब होती है देयर इज अ लॉट ऑफ सॉइल इरोजन आल्सो मे टेक प्लेस। सॉइल इरोजन होती है ना, अगर हम वाटर सेव कर रहे हैं, वाटर मूव नहीं कर रहा, तो सॉइल इरोजन भी कम होगी। देयर आर लेस चांसेस ऑफ फ्लड एंड सॉइल इरोजन, या रिड्यूसेस फ्लड एंड सॉइल इरोजन, ऐसी चीजें भी कम होती हैं, राइट। और जो हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करनी पड़ती है वो भी कम हो गई। इट रिड्यूसेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर,
है ना। शॉर्टेज ऑफ वाटर जो हम सफर करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस, इट ऑल्सो रिड्यूसेस शॉर्टेज ऑफ वाटर जो हम सफर करते हैं। हाँ जी बच्चे, और कोई एडवांटेज अगर किसी के माइंड में है, यू कैन शेयर, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट ऑल्सो। यस बच्चे, लक्ष्य। लक्ष्य, यू वांट टू शेयर समथिंग? No, ma'am. ओके, ठीक है। अगर कोई और पॉइंट बेटा किसी के माइंड में है, वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है और मुझे लगता है आप लोग काफी पॉइंट्स बना सकते हैं। ओके, एनी हाउ आई थिंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सबको क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, उसके एडवांटेजेस क्लियर है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस, बिल्कुल बच्चे। समृद्धि, यू कैन ऑल्सो राइट दिस पॉइंट, इट कैन प्रमोट बोथ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन दोनों ही प्रिवेंट करते हैं। हाँ, ये आ रहे हैं जानवी, इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स में से अब एक सेकंड जर्नल टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग मुझे स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हो। कल तो डायग्राम करना था इसलिए ये हमने लिया था। इसके अलावा था जैसे हाउ कैन वी सेव वाटर, या वाटर को कैसे मैनेजमेंट करना है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, या रिड्यूस wastage of water by reducing wastage of water, ठीक है। I hope this point can be explained by very well by you guys. ये point आप सब explain कर सकते हो अच्छे से? If we use rainwater, it automatically prevent the usage of, हाँ, reduces हो सकता है, ठीक है। सानिया, ये point भी आप add कर सकते हो, right? How can we reduce the wastage of water? We will mop the floor instead of washing, switch off the taps while brushing, right? And if we see any tap open here and there or a leakage of tap, it should be repaired immediately. These are some general points. That's right, Jalish. Third point, drip irrigation. What is drip irrigation? Anyone? Yes, ma'am. When you are muted. When you are muted. वो मुझे पता है जनरल, ड्रिप इरिगेशन बोलो, वो आपकी आवाज कई बार रिपीट होती है, दैट्स व्हाई आई हैड डन। प्लीज। Okay, ma'am. Ma'am, drip irrigation is a technique in which water is supplied directly to the base of the plants with the help of narrow tubes. बिल्कुल ठीक है बच्चे। इट इज अ टेक्निक इन विच वाटर इज सप्लाइड, एवरीवन ऑफ अस नो दैट कि जब हम प्लांट्स को वाटर डालते हैं, द प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। तो पूरे प्लांट को ऊपर से लेके नीचे तक वाटर डालना, इट इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स। So drip irrigation is that technique in which water is supplied to the plants, to the supplied directly to the base of the plant, directly to the base of the plant, plant के base को दिया जाता है, base of plant, ठीक है, बाय नैरो ट्यूब्स। बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं और दे आर हैविंग, हाँ जी, इट्स एन एफिशिएंट इरिगेशन टेक्नोलॉजी
that helps to save water. Narrow tubes, normally they are having holes, और इन holes से directly roots में पानी जाता है. It is not supplied to the whole plant. पूरे plant को नहीं मिलता, सीधा roots को ही पानी मिलता है. So this is one of the technique to save our water. अगर हम water को पूरे वो plant को water देते हैं तो it takes a good amount of water. और अगर हम water सिर्फ roots को देते हैं तो we can have a healthy plants with less amount of water, right? Efficient taps. Hanji, Samriddhi, can you explain this point? Samriddhi. Samriddhi, can you raise the hand? I am not able to hear you. Okay, हाँ जी बच्चे बोलो. Efficient taps. Yes मैम efficient taps means जैसे कि अब वो जैसे ओवर यूज से वो लीकेज Efficient type of leakage of tap. For example, the There tap is you might guys have seen in the hotels or restaurants that are having sensors. The taps with sensors. Am I right? You mean to say this? yes Right? ma'am. The taps with sensors, they automatically get off when no one is washing the hands, when it will not sense the skin. ठीक है? जब ये skin या sense organs को sense नहीं करती, they will automatically turn off. Automatically turns off when it will not observe the sense organs, when it will not sense the skin or sense organs. Okay, skin is one of our sense organ ना, और जब हम हैंड टैप के नीचे करते हैं ऑटोमेटिकली इट विल टर्न ऑन, और जैसे ही हम पीछे करते हैं इट विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ. आई थिंक एवरीवन हैज सीन इट. मोस्टली होटल्स, रेस्टोरेंट्स में, पैलेसेस में यही चल रही है. ठीक है. इसके अलावा बेटे ये टेक्निक you guys can have a look in your school also. What is this technique? This is the reuse of waste water. अब ये कहाँ पे है? आप लोगों की पुरानी बुक शॉप याद है? बुक शॉप याद है पुरानी छोटे वाली कैंटीन सबको? उस कैंटीन के पीछे ये टेक्निक अप्लाई की गई है जिसमें आपका वेस्ट वाटर जो है दैट इज रीयूज्ड. The wastewater is purified and it is used for filtration, for plantation and for other cleaning purposes of the school. ठीक है? The waste water is treated and then it is reused again. Waste water is treated and reused. किस चीज के लिए यूज किया जाता है? नॉर्मली फॉर क्लीनिंग पर्पसेस और फॉर प्लांटिंग और फॉर गिविंग टू प्लांट्स और फॉर प्लांटेशन. ठीक है. अब जब भी आपको स्कूल आओगे काइंडली जस्ट हैव अ लुक ओवर इट कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है. एक छोटा सा प्लांट लगाया गया है. आपके स्कूल का जितना वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके, नेचुरली आप सबको पता है आपके स्कूल की क्लीनिंग भी होती है और जितने भी प्लांट्स हैं दे आल्सो नीड लॉट ऑफ वाटर. वो सारा इस ट्रीटेड वाटर से मैनेज होगा. ठीक है जी. So you can have a good view over that, or as a practical example when you guys will come to school, we will definitely go for that.
Okay, this is one of the technique to save our water. And इसके अलावा बेटे एक और टेक्निक थी that has been used from long ages, especially in the areas of west, राजस्थान वाले एरियाज में थी. That is the technique of Bawris. Bawris सुना हुआ है? बावरीज क्या होता है बेटे? इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरेज टैंक. एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें स्टेप्स उतर के ना पानी वहां पे स्टोर हो जाता है. जब रेन होती है ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे उतरते उतरते दैट्स राइट, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेप वेल. नीचे उतरते उतरते थोड़ा टाइट हो जाता है और वहां पे रेन वाटर काफी सारा गैदर हो जाता है एंड इट कैन बी यूज्ड इट फॉर फर्दर यूज. ठीक है, लेटर यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. सो बावरीज की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, इसकी डिटेल्स आप वहां से भी ले सकते हो और यू कैन यूज योर ओन, राइट. हाँ, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दैट्स करेक्ट. रानी जी की बावरी इन राजस्थान, यस, काफी सारी बावरीज है राजस्थान का. अगर आप सर्च करोगे यू विल फाउंड अ लॉट ऑफ बावरीज ओवर देयर. ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग से जब से मुझे लगता है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव ऑब्जर्व कि वहां पे रेन कम होती है, वाटर कम होता है, तो जो भी वाटर होता है दे गाइस मेक द टेक्निक्स टू सेव दैट वाटर एंड बावरीज इज वन ऑफ देम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, this is one of the most important technique which is widely used to save water, to supply water, that is construction of dams to make a efficient use of water. वाटर के मल्टीपल और एफिशिएंट यूजेस के लिए ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत वाइडली हम लोग यूज करते हैं. Yes, that's right, Shreya, you can write this point. ठीक है, डैम्स क्या होते हैं बेटे? डैम्स आर नथिंग बट अ वॉल, एक तरह की दीवार होती है जो रिवर के बीच में बना दी जाती है इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, ताकि पानी पूरा का पूरा निकल के आगे तक ना जाए. ठीक है, दैट इज अ हाँ जी, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. डैम्स क्या है? सपोज देयर इज अ रिवर, एक रिवर है, रिवर इज फ्लोइंग इन इट्स फॉर्म, जैसे उसकी रिवर की मूवमेंट है, इट इज जस्ट मूविंग लाइक दैट. व्हाट हैपेंस? देयर इज अ वॉल, एक टेम्परेरी वॉल बना दी जाती है. इस वॉल का क्या पर्पस है? नेचुरली है, अगर वाटर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नॉर्मल रिवर वाटर कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली इट लीड्स टू द सी, एंड व्हेन वंस द वाटर इज एंटर्ड इनटू सी इट बिकम्स वेस्ट. यू गाइस कांट यूज इट बिकॉज इट इज टू मच सॉल्टी, है ना? बट रिवर वाटर इज कंपैरेटिवली लेस सॉल्टी एंड वी कैन सेव इट. These dams do not allow the whole water to move into the sea, right? There are windows, there are passages, there are doors in this dams, and only about a limited amount of water to move to the rivers and enter into the sea, right? And this water can be used for multiple purposes. अब देखो ये वाला वाटर इतना सारा यहाँ पे स्टोर्ड है, इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस ना. फर्स्टली तो यहाँ पे टर्बाइन्स लगाई जाती है. टर्बाइन्स आर मेड ओवर हियर. व्हाट इज द रोल ऑफ द टर्बाइन्स? याद है? टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना. सेकेंडली, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड बिहाइंड द डैम, इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन. कैन बी, can this water be used for irrigation also? ठीक है, एनर्जी के लिए भी यूज हो रहा है, इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा है, और साथ ही साथ वाटर को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं हम. Isn't it? We are protecting the water. That will definitely help us.
So this is one of the most effective technique that is used as a water management technique. हाँ जी बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, you guys can ask. ठीक है? So in short हमने किया है water management technique. First हमने की थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बावरीज क्या होती है? बावरीज श्रेया ने बड़ा अच्छे वन वर्ड लाइन लिखी थी. आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. वही वाली लाइन में दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ, यस, बावरीज आर डीप स्टेप वेल्स बिल्ट इनटू द ग्राउंड. ठीक है? दीज आर डीप स्टेप वेल्स built into the ground. Especially they can be found in the regions of Jaipur, Jodhpur, in that areas. Built into the ground. Right? These were built by the people in olden times for storing rainwater. Were built by people in old time, built by the people in the old time for storing rainwater, and you can find it in the areas of Jodhpur and Jaipur. They are mostly popular in areas of Jodhpur, Jaipur, Rajasthan, जो मर्जी लिख लो, etc. ठीक है? उस एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ रेन बहुत कम थी. Yeah, this was a quite old method for rainwater harvesting. काफी पुराना मेथड है और from long time they were using it. Even तब से ये चीज चल रही है जब से एक किंगडम रूल था इंडिया में. किंग्स होते थे, रानीज होती थी, क्वींस होती थी. तब से ये बावरीज का जो टेक्निक है, दे आर फॉलोइंग. इवन बच्चे अगर किसी को चांस मिले ना राजस्थान वाली साइड घूमने जाने का, have you heard about? There are different ways, there are different techniques by which we can save water. Afterwards, there is a short topic left. कि what happens if we will not still aware, we are not still aware to save our water. अगर अभी भी हम अपना water नहीं save करते, what kind of difficulties we need to face? किस तरह के difficulties हम face करेंगे? That means effect of water scarcity that we have to face. We'll discuss it tomorrow or on Monday, right? Tomorrow we'll try to do some practical and on Monday we'll go to complete this topic. Okay, Ji? Till then, take care. Bye bye, Vachi.